Hi friends, I'm RJ Bhagna and we have with us Mr. Anmol from Shamrock Group and Mr. Ashok Kumar Thakur from Muni International School. Anmol ji, I'll start with you. We're talking about hybrid. Ever since morning, I know you all have been only talking about how hybrid teaching, hybrid teaching. But if I talk about your institutions, was there anything that was most challengeable when it comes to hybrid teaching? And what is one thing that you really conquered over? All right, thank you for that question. Yes, it was very difficult times in sorry about Going back. that. These times were difficult because it was totally unknown and we were unprepared for this as a school, as an organization. So we had been experimenting how to use technology, and flipped classroom was something that we had already been working on. We'd done a pilot as well. So the good thing was we had something to work upon, and the biggest challenge I think was not from the students' perspective, was from the adults in the whole scenario, the teachers and the parents, to understand and accept that this is the new reality. And if we have to ensure the children keep learning, then we have to accept that since the schools are not there, this is the next best thing, and we have to accept that. So that acceptance took time. Children, of course, were excited. There was a new way of learning. I don't have to go to school. But then that fatigue started setting in, and then parents' expectations, because the output of digital learning was not. So then everybody had to go back to the drawing board and rework the way they were teaching learning, seeing that what is achievable, what is not. You can't just replicate the physical school online. So I think what we did was, it was always about keeping your ears to the ground, keep listening, keep experimenting, and have to accept that out of 10 things you try, 8 will fail, but the 2 that will work, scale it up, again experiment. And this cycle of experimentation and being open and saying I don't know was something which I felt has culturally changed us, and I think this is something which I really feel that going forward, this is going to be a strength of our organization, to constantly experiment, and what the outcome is something better for the children, I think, at the end. अशोक जी, आई लाइक टू आस्क यू कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कैरेक्टर बिल्डिंग की, ह्यूमंस की. वाई? बिकॉज वी आर इन सोशल सर्किट और कोरोना ने हमें सिखाया वी नीड बेटर ह्यूमन बींग्स देन बेटर प्रोफेशनल्स. And when we talk about better human beings, right from childhood till 12th grade, you have to create better human beings. What something different does your institution do to instill that character building? थैंक्स मैम. मुझे तो लगता है कि आपने मेरे वाला क्वेश्चन ही मुझसे पूछा. आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट इसी बात के लिए जाना जाता है, वैल्यू एजुकेशन के लिए. मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आदमी का एटीट्यूड ठीक करो, एप्टीट्यूड आ ही जाएगा. Yes. और आजकल मशीनें बहुत एजुकेटेड हैं. कभी कहा करते थे कि मशीनों में ज्ञान नहीं है, और अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में करके प्रोजेक्ट चलता है. Yes. मैं 2016 से ही हाइब्रिड पे काम कर रहा था. जी. और एक लाइटर नोट पे बोलता हूँ कि नाम तो मुझे कोरोना ने बताया, काम पहले कर रहा था. Yes. मुझे क्योंकि अब वो समय आ गया था कि जब सब्जेक्टों के चैप्टरों को मर्ज किया जाए. जी. अब वो जमाना गया कि 12 महीने 11 महीने वो एक शरीर बड़ा होगा और मार्च के महीने में टेस्ट होगा. Yes. क्योंकि जनरेशन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है. जो काम पहले 50 साल में होते थे, बाद में कुछ टाइम 80-90 में वो 20-25 में होने लगे, आज 20-25 दिन में होते हैं. जी. अब इस दौर में भी अगर हाइब्रिड ना हो, मैं कहता हूँ शायद हम दुनिया के विकलांग पैदा कर रहे हैं. Yes. मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है जी. कि जब बच्चे स्कूल ना पहुँचे तो स्कूल बच्चों तक पहुँच जाए, और स्कूल की बाउंड्री ना हो, ऐसा क्यों ना निर्माण कर सके. वाकई एक ऐसे सपने को हमने देखा है, और मुझे ज़रूर लगता है कि आने वाले समय में हम एक ऐसा भारत ज़रूर बनाएंगे जहां बच्चों को स्कूल तक नहीं, स्कूल बच्चों तक पहुंचेगा. यानी हम 100% एजुकेशन की बात कर सकते हैं. वी हैव मिस्टर अनमोल विद अस. अनमोल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. एक टाइम था जब स्कूलों में कॉम्पिटिशन होता था, एक स्कूल दूसरे स्कूल से अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कहीं हमारी स्ट्रैटेजी कॉपी ना हो जाए. पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया एक दूसरे का साथ निभाओ, लर्न द टेक्नोलॉजी फ्रॉम ईच अदर, लर्न व्हाट समबडी इज डूइंग टू इम्पार्ट द एजुकेशन. सो अगर आप इस नजरिए से देखते हैं, आपको लगता है हम एक समाज को बदल पाएंगे अब इस तरीके से? So I think that's true, because इस टाइम पे क्वेश्चन सर्वाइवल का आ गया, अबाउट बीइंग रेलेवेंट, कि क्या स्कूल क्यों होने चाहिए. जब बिल्डिंग ही नहीं है तो बच्चे आ ही नहीं रहे, तो फिर स्कूल को फीस क्यों मिले, टीचर्स को सैलरीज क्यों मिले. सो आई थिंक एवरीबडी हैड टू हैव एन ओपन माइंड कि, एंड एवरीबडी वांट्स कि सेक्टर सर्वाइव करे, एक दूसरे से सीखेंगे, बिकॉज इन अ वे एक कंपटीशन आ गया कि पेरेंट्स के ऑल्टरनेटिव्स आ गए, एडटेक कंपनीज आ गई हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बच्चा पढ़ लेता. फिर वो अगर उसने स्क्रीन ही देखना तो फिर एडटेक कंपनीज के पास जाए, स्कूल में क्यों आए.
सो आई थिंक स्कूल्स हैड टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। जो कंपटीशन, जो ज़्यादा डर ये था कि अगर हम बिल्कुल ही खत्म ही ना हो जाए। पहले था कि मैं 5% ऊपर नीचे होऊंगा तो मैं उससे कम्पीट करना है, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। सो आई थिंक दिस इज बिन गुड ओवर देयर। सो एवरीबडी हैज कोलैबोरेटेड। आज भी एक सेशन हुआ है, आज बात जो हम कर रहे हैं हाइब्रिड लर्निंग की, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हम सब सर भी नोट्स ले गए, मैं भी नोट्स लेके जा रहा हूँ घर पे, विच इज़ वेरी रेयर। पहले नहीं ऐसा होता। पहले आते लोग आते थे, बोलते थे अपना, बोल के चले कि मैं कितना महान हूँ, आई एम सो गुड। सो व्हाट हैज हैपेंड आउट ऑफ दिस इज अल्टीमेटली वी ऑल क्वेश्चन द फंडामेंटल थिंग दैट व्हाई डू स्कूल्स नीड टू एग्जिस्ट, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड टू कम टू स्कूल्स। जैसे सर ने कहा कि दीवारें क्यों हैं, व्हाई, तो लेट्स क्वेश्चन द होल रोल ऑफ अ स्कूल। एंड what the outcome इस कोरोना की वजह से आया कि हमने और चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, पेरेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों ने देखा कि दिस अ बेटर वे ऑफ लर्निंग फॉर सम चिल्ड्रन। परहैप्स यूट्यूब वीडियो देखना वाज बेटर देन फॉर एग्जांपल वॉल्केनो है कॉन्सेप्ट, और टीचर बोर्ड पे 25 मिनट ड्रॉ करते थे चौक के साथ वॉल्केनो। वो एक्सपीरियंस अब यूट्यूब वीडियो में 5 मिनट में खोलो, जो साउंड है उसका, लावा का इफेक्ट है उसका क्या, विदिन 15 मिनट्स वन बच्चा इतना इंटरेस्ट से सुनेगा और जिंदगी भर नहीं भूलेगा वॉल्केनो क्या है। और वो बोर्ड पे वो टीचर ड्राइंग कर रही है, उसका नहीं इम्पैक्ट आता है। सो आई थिंक समहाउ वी हैव ऑल एक्सपीरियंस अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। टीचर्स हैव सीन कि इससे दिस इज फास्टर फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, मेरा काम भी ईजी हो रहा थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड वो जो एक कहते हैं इनर्शिया था सब में कि ऐसा ही होता है, पहले आप स्कूल जाते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी चले जाओ, नहीं है कम पैसे तो इंडिया में चले जाओ। अब वो सारी चीज़ें क्वेश्चन हो रही हैं एंड अल्टीमेटली जो निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। पीपल, बच्चे अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री है यूके में, और अगर मुझे स्क्रीन ही देखना है तो मैं वो घर पे क्यों ना कर लूँ, और वो 1 करोड़ रुपये से मैं अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर लूँ उस पैसे के साथ। क्यों ना मैं यूडेमी पे या कोर्सेरा पे कोर्स कर लूँ, स्किल सीख लूँ और अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूँ। सो आई थिंक दिस इज चेंजिंग। और जो लोग अडेप्ट नहीं कर रहे दे विल बिकम डायनासोर्स, और जो अडेप्ट करेंगे दे विल सक्सीड इन दिस न्यू वर्ल्ड। और जैसे सर ने कहा कि कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहेंगी आपके पास। आज भी स्कूल ऐसे हैं जो फिजिकली चला भी रहे हैं, उनका बच्चे दूर से भी एनरोल्ड हैं, उन बच्चों के पास कोई बिल्डिंग भी नहीं है, और वो बच्चे जो दूर बैठे रिमोट एरियाज में, उनको अच्छे एजुकेशन का एक्सेस मिलना शुरू हो गया। आज हमारे पास हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में शेमरॉक के 8-9 कंट्री से बच्चे पढ़ रहे हैं, NRIs के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं बच्चों को अच्छी इंडियन एजुकेशन मिले। आज से पहले ऑप्शन था ही नहीं। अगर आपकी पोस्टिंग जर्मनी में होगी तो आपको जर्मन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो वैल्यू सिस्टम कैसे आएगा? तो वो आज एक इट्स बिकम अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सब अच्छे स्टूडेंट बने। हम जब जो गुरुज थे हम लोग, हमें स्टूडेंट बनना पड़ा। एंड आई थिंक ये अल्टीमेटली जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चों को फायदा होने वाला है इससे। सो डेफिनेटली आई एम हैप्पी। हमारा न सिर्फ भारत बदल रहा है लेकिन हमारा विश्व भी बदल रहा है, और इसी से हमारा जो एजुकेशनल पैटर्न है और ये सिस्टम है, कुछ बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक बनाने वाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स मैम।